mutual आपस में, with each other, and when we say with each other there has to be two members. तो दो मेंबर इसमें कौन कौन है? आंसर है there are two coils. These may be two solenoids or two coils in one plane. This is the one and this is other. हम इसको कैसा भी रख सकते हैं? Initially we place them with one same axis. इस एक्सिस पे हमने इनको साइड बाय साइड रखा, जस्ट टू अंडरस्टैंड. प्रैक्टिकली हम एक के ऊपर एक रखते हैं. अच्छा, ऐसा रखने से क्या होता है? वन इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी, ए स्विच, और हम चाहे तो यहां पर एमीटर लगा सकते हैं, एम्पियर मीटर. Another is connected only with a galvanometer which will show current, and there is no source of EMF in the second coil. This is coil 1, this is coil 2. Okay, this has got certain number density, and 1 it has got number density, and 2 दोनों की अपनी अपनी लेंथ है, दोनों का अपना अपना एरिया है, A1 A2. ओके, we will come to that numerical part. फर्स्ट फिनोमिना देखिए. अभी ये दोनों में कोई करंट नहीं है क्योंकि दोनों में हमने EMF अप्लाई नहीं किया है. नाउ वी अप्लाई इन सोलेनॉइड नंबर 1. In coil number 1 we switch it on. जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन, द करंट गोज फ्रॉम 0 to I. ये करंट चेंज होती है. तो जैसे ये करंट 0 to I चेंज होती है, वी फाइंड दिस शोज करंट I. पहले स्टार्टिंग में क्या था? 0. उसके बाद हमने क्या किया? स्विच ऑन. स्विच ऑन करने से इसका I 0 to I हुआ और इसमें करंट I हमको दिखने लगी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसके बाद दिस रिमेन ऑन. जब ये ऑन रहता है तो इसकी करंट कितनी रहती है? I. और इसकी करंट हमने देखी 0. फिर से हमने इसको किया स्विच ऑफ. जैसे ही स्विच ऑफ किया, करंट गोज फ्रॉम I to 0. करंट फॉल्स फ्रॉम I to 0, एंड हियर वी ऑब्जर्व करंट. देयर इज ए पर्टिकुलर करंट. अगेन current 0. So we have seen when the current is either 0 or the current remain maximum. In both cases the current is 0. In this coil there is a current only when there is certain change taking place. ये हम लोगों ने Faraday's law में भी पढ़ा है. ये कैसे होता है? यहाँ पर जैसे ही करंट इंक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ दिस करंट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. The moment we switch it on, the line keeps on making, increasing, and these lines are touching this. The magnetic field lines touching a coil makes a magnetic flux, and because this is increasing continuously, the flux is also increasing continuously, and there is a change in flux. Because of the change in flux, an EMF is induced across it, and that is how much? d phi by dt. This EMF across this coil on the completion of circuit makes the current, and that current is visible in galvanometer. ठीक है? तो ये जो फिनोमिना है, this phenomena, what phenomena? We are giving current to
one coil and we observe current in the other coil. फिर से, we are changing current in one coil and we observe current in the second coil, which is not connected to any cell. This phenomena is known as mutual inductance. Okay, mutual inductance. Current is induced in the second coil. This phenomena is mutual induction. रीजन आपको समझ में आ गया? Current in the first coil makes a magnetic field which links with the second coil. उसको टच करता है. Hence change in current. Hence change in current amounts to change in magnetic flux, amounts to change in magnetic flux. Which induce EMF, current in second coil. ये इसका रीजन है. नाउ द करंट flows in coil number 1, which makes the flux, and some flux links with the second coil, which produces the EMF. In this, the flux linked with second coil is directly proportionate to current flowing in the, or rate of change of current, or current flowing in the first coil. जैसे जैसे हम फर्स्ट कॉइल की करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, the flux linking with the second coil will go on increasing. So the flux in the second coil is proportionate to current in the first coil. This is calculation, and when we make it equal, then what this will be, phi 2 is equal to a constant I1. Sometimes I will write it capital, sometimes small, don't mind it, दोनों का मतलब एक ही है, both mean same. This M is coefficient of mutual induction. और इसका हमने सिंबल बना दिया कैपिटल M, mutual induction. So this is coefficient of mutual induction. Now how much is M? How can we define it? M is equal to phi 2 upon I1. If I1 is equal to 1, then M is equal to phi 2. This gives us definition. What definition? When in the coil number 1 the current flowing is 1 ampere, then whatever flux is connected with the second coil, that amounts to coefficient of mutual induction with the second coil.
ठीक है, और इसको हम नोट भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए इसका यूनिट क्या होगा? फाई अपॉन आई, फाई इज वेबर, आई इज एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। ये पिछली बार भी हम लिखना भूल गए थे हेनरी के लिए। अगेन वेबर पर एम्पियर ये हम पहले भी कर चुके हैं, किसमें? सेल्फ इंडक्टेंस में, और उसका हम नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। व्हाट वाज दैट नेम? हेनरी। इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा? हेनरी। सो फॉर म्यूचुअल इंडक्शन अगेन इट इज हेनरी, एंड हेनरी इज वेबर पर एम्पियर। अच्छा, अब इसको हमने म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कर लिया, इसकी यूनिट देख ली, इसका कांस्टेंट देख लिया। ये कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? ये कांस्टेंट क्या करता है? ये दो कॉइल हमारे पास हैं, इस कॉइल में हम 1 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं, इसके साथ फ्लक्स लिंक हो गया 10, उस कॉइल को रख दिया, दूसरी कॉइल लेके आए, फिर इसमें 1 एम्पियर फ्लो कराई फर्स्ट में, अब इस सेकंड में फ्लक्स लिंक हो गया 20। फर्स्ट में हम पहले कितनी करा रहे थे? 1 एम्पियर, दूसरी बार भी कितनी करा रहे थे? 1 एम्पियर, पर पहली बॉडी लाए तो उसके साथ 10 फ्लक्स लिंक है, दूसरी बॉडी लाए तो इसमें 20 फ्लक्स लिंक है। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिफरेंस है। एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट 10 है और दूसरे का 20 है। ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और ये हमने क्या देखा? जोड़ी नंबर 1, ये जोड़ी नंबर 2। सो फॉर फर्स्ट पेयर म्यूचुअल इंडक्शन इज 10, फॉर सेकेंड इट इज 20। व्हाट इज दिस 20? 1 एम्पियर, हाउ मच इज फ्लक्स? 20 वेबर। व्हाट इज दिस 10? 1 एम्पियर इसमें फ्लो कराइए, इसमें कितना फ्लक्स आएगा? 10। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन दीज टू, ठीक है। एक दूसरे को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज म्यूचुअल। ओके, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन कभी 10 और कभी 20 क्यों है? Why? The answer is we searched it and we found that it is again due to their geometry, due to their construction. जैसे कैपेसिटेंस, एरिया, डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन पे है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ, वो भी कंस्ट्रक्शन पे। इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन भी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ म्यूचुअल इंडक्शन, ना एक चीज और, हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस सेकेंड कॉइल। फिर से अभी हमने क्या स्टडी किया? द करंट फ्लोज इन कॉइल नंबर 1, ए फ्लक्स इज लिंक्ड विद कॉइल नंबर 2। इफ वी मेक चेंजेस इन करंट, then the flux will also change, and when there is a change in the flux, an EMF is induced, because of the EMF current will flow in it. वो EMF कितना इंड्यूस होता है? तो EMF का फॉर्मूला हमको मालूम है, that EMF is according to Faraday it is d phi by dt। उसी को हम यहाँ यूज करके इसका इक्वेशन बनाएंगे विद रेफरेंस टू म्यूचुअल इंडक्शन। The current I1 flows in coil 1. और phi 2 को अभी अभी आपने पढ़ा, phi 2 is equal to mi1। So this we can write as mi1। ध्यान रखिए इसमें 1 और 2 में बहुत कंफ्यूजन होता है, बी वेरी क्लियर। फाई किसके साथ लिंक है? सेकंड के साथ, इसलिए फाई के साथ क्या लगा? 2। लेकिन करंट किस में फ्लो हो रही थी? 1 में, जिसके कारण ये फाई बना था। इसलिए जब करंट आएगी तो क्या होगा? 1। ओके, सो दिस इज माइनस m di1 by dt, और ये ई किस में प्रोड्यूस हो रहा है? नंबर 2। इसकी 2 की जरूरत नहीं हो सकती क्योंकि ई एक ही में प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट में तो हमने अप्लाई किया है ना। यहां पर देखिए ई अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट? di by dt, जो कि सेल्फ इंडक्शन में होता था। तो फॉर एनी इंडक्शन the EMF depends upon di by dt. If it is a self inductor, a single inductor, then L will be there. If it is a mutual induction, then there M will be there. Okay, so this is
EMF induced in the coil number 2. Now, what is mutual induction? Based on this calculation, we can define mutual induction M is equal to E divided by di by dt. ओके, ये di किस में है 1, ये E किस में प्रोड्यूस हुआ 2. नाउ आई टेल यू, देखिए जरा डिफाइन कर रहा हूं. इफ इन कॉइल नंबर 1 the rate of change of current is 1 ampere per second, then EMF induced in coil number 2 is equal to the mutual induction between coil number 1 and 2. समझ आया? फिर से, ये mutual induction के लिए भी कई लोग डायरेक्शन बनाते हैं. We can also write it. EMF किस में पैदा हो रहा है 2 में, और उसका कॉज किस में है करंट 1 में, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन आएगा. म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल नंबर 1. सो दिस इज, नाउ वी विल राइट इट इन द वर्ड्स, ये व्हाट आई टोल्ड यू. ओके, सो वी विल राइट इट दिस वे. व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? Coefficient of mutual induction. So, coefficient of mutual induction between two coils is numerically equal to EMF induced in coil number 2, when rate of change of current in coil number 1 is 1 ampere per second. ठीक है, और ये हमने किस फॉर्मूला से बनाया? M is equal to E di by dt. Now, this depends upon what? So it depends upon geometry. It depends upon geometry or construction. Construction of coil. That is number of turns, length, एरिया, ETC. ओके, ये दोनों के बीच में, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन, हाउ द टू कॉइल्स आर प्लेस्ड. सो initially we will study the two coils are placed in such a way that the flux made by first coil is 100% touches the second coil. फिर से, the magnetic field made by the first current carrying coil completely touches the second coil. जैसे फर्स्ट वाले में 100 लाइंस बनी, तो सेकंड वाले को कितनी टच होनी चाहिए 100. इसने 100 बनाई और इसको 80 टच हुई, 20 बाहर निकल गई, देन दिस प्रिंसिपल विल नॉट अप्लाई. M की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. इज दैट नॉट M? आंसर, दैट इज M, बट दैट इज M फॉर दिस गिवन सेटिंग. M की मैक्सिमम वैल्यू हमको कब मिलती है? when 100% of the magnetic field is linked with this. Anyway, अभी 100% मिलता है, 50 मिलता है, 70 मिलता है, there will be a particular value of M. अगर 100 मिलता है और M की वैल्यू आती है 20, ठीक है, ऐसा कर दिया. अब 100 फ्लक्स नहीं मिलता है, कम फ्लक्स मिलता है, तो M की वैल्यू हम देखते हैं 15 हो गई, M की वैल्यू 10 हो गई. We will come to that after this. First we will find out what is the value of M and let's calculate that. Calculation of coefficient of mutual induction between two coils. There is one coil, we are giving it the current I1. So how much will be the magnetic field? देखिए हमारा फाइनल टारगेट क्या है? What is mutual induction? Mutual induction is phi produced in coil number 2 divided by current given in coil number 1. ये म्यूचुअल इंडक्शन था. तो ये दो चीजें हम करंट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन है? I1.
वहां से स्टार्ट करेंगे. हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड? बी मेड बाय coil 1 is mu naught N1 I1. ये कौन हो गया? B. ठीक है, B made by 1, right? Now this B goes there and connect with all the coils. How much is the flux with one turn? Flux with one turn of coil 2 is flux with one turn is equal to, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B मल्टीप्लाइड बाई A. B हमने कितना लेना है? म्यू नॉट N I1 और इसका एरिया हमने लिया A. A किसका? दूसरे का. सो वी राइट इट A2. ठीक है, ओके. नाउ फ्लक्स टोटल विथ कॉइल 2 इज 5. सॉरी, इसको मुझे 5-1 नहीं लिखना चाहिए. 5-1 इसके लिए था. 5-2 1 टर्न. दिस इज 5-2 टोटल. 5-2 टोटल कैसे निकालेंगे? दिस इज म्यू नॉट N1. दिस वॉज N1 I1 A2. ये किसके साथ फ्लक्स जुड़ा हुआ था? एक टर्न के साथ. अब बताइए दूसरे में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? इसकी लेंथ है L और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2 पर यूनिट लेंथ. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए? N2 मल्टीप्लाइड बाय L. सो ये एक टर्न के साथ इतना फ्लक्स है, तो टोटल टर्न्स के साथ कितना हो जाएगा? N2 मल्टीप्लाइड बाय L. दिस सो ये 5-2 आ गया. दिस इज द फ्लक्स linked with the second one. Then what is M equal to? 5-2 upon I1. ये 5-2 है, इसमें I1 से डिवाइड कर दीजिए. सो व्हाट डू वी गेट? म्यू नॉट N1 N2 AL. और ये A हमने कौन सा लिया? 2. ये आ गया. ठीक है. अच्छा, अब suppose this mutual induction is 1-2 or 2-1. आंसर है mutual induction of coil number 2 with respect to 1. That means current produced by 1, induction is going on in 2. Now we change the sequence. सीक्वेंस हमने चेंज कर दी. अब उसके साथ EMF सोर्स लगाया और यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर देखा. Now we are changing current in number 2 and we are seeing the flux change and EMF produced in coil number 1. ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? The current is induced in EMF induced in 1 due to changes of current in 2. That is M12. M12 कितना होगा? आंसर है M12 is equal to flux produced in 1 when the current is flowing in coil number 2. ये कितना होना चाहिए? According to this formula, we again repeat it. इसको जब हम रिपीट करते हैं तो म्यू नॉट वैसा ही रहेगा. N1 की जगह कौन आ जाएगा? N2 की जगह कौन आ जाएगा? N1. दोनों की लेंथ एक है L. और एरिया किसका लेना?
A1, ठीक, A1। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं M21 और M12 सेम सेम सेम, ये डिफरेंट है, तो ये दोनों M कैसे दिखते हैं हमको? डिफरेंट, पर डिफरेंट होते नहीं। क्यों नहीं डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इसके फॉर्मूला में हम A1 और A2 दो नहीं लेते, कोई भी एक लेते, कोई भी एक, आइदर A1 और A2। इस बात को थोड़ा आपको बारीकी से समझना है कि दोनों की जगह एक कैसे लिया जाएगा। तो इसे देखिए, इस तरह से मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। सपोज दिस इज A1, ये एरिया है A1 और ये एरिया है A2, दिस एरिया इज A2। इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया ऐसा, कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है? A1 की A2 में, ये इसका एरिया कितना है? A1, इसके A1 में मैग्नेटिक फील्ड बना और वो मैग्नेटिक फील्ड बन के ये A1 में मैग्नेटिक फील्ड बना और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। सपोज इट्स वेरी क्लोज, फैलने के पहले की बात कर रहे हैं, कितने में जा रहा है? A1। तो बताइए, इसका एरिया A2 है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने पूरे A2 को टच किया या सिर्फ A1 को टच किया? सिर्फ A1 को किया, क्योंकि इधर और इधर तो है ही नहीं। तो इसका जब हम कैलकुलेशन फ्लक्स का करेंगे, फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो हमको कौन सा एरिया लेना चाहिए, A1 या A2? A1। क्यों? क्योंकि बाकी एरिया में तो ये टच ही नहीं करता। समझ आया? तो हमको A1 हमने यहां पे लिया। दूसरा केस देखिए, दिस इज ये A1 और ये A2, दिस एरिया इज A2। अब इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, बना के इसने मैग्नेटिक फील्ड भेजा, कितने एरिया में भेजा इसने? इसने कितना बड़ा बना के भेजा? A1। क्या ये पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स इसको मिला? नहीं मिला। कितना मिला? A2। मान लो उसको, इसका नाम हमने रखा, इसका नाम हमने रखा AZ, सॉरी ये वाला छोटा वाला A मिनिमम या A स्मॉल, और ये वाला हमने रखा A लार्ज। ये बनने वाला कितना है? A स्मॉल। ये वाला कितना है? A लार्ज। तो हमको कैलकुलेशन के लिए A स्मॉल लेना है या A लार्ज लेना है? A स्मॉल। यहां देखिए, ये A लार्ज एरिया इसके पास है, इसने मैग्नेटिक फील्ड A लार्ज में बनाया, इसके साथ कितने में टच हुआ? A स्मॉल में, बाकी में टच नहीं हुआ। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना लेना है? AS की AL? AS। तो पहली बार AS इसके पास था, दूसरी बार AS इसके पास था। पहले आप बोलते हो इफेक्टिव एरिया AS लेना है, दूसरी बार भी आप बोल रहे हो इफेक्टिव एरिया AS लेना है। तो इफेक्टिव एरिया हमको पहले का लेना है कि दूसरे का लेना है? तो आंसर है पहले दूसरे का सवाल नहीं है, हमको वो लेना है जो छोटा है। समझ आया? छोटा है क्यों? समझ आ रहा है ना? देखिए कितनी अच्छी एनालॉजी है कि अगर ये बड़ा है लार्ज और ये है छोटा, तब भी हमारा कांटेक्ट कितने में होगा? छोटे में। और अगर ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तब भी हमारा कांटेक्ट कितने में होगा? छोटे में।
तो एक कॉइल का एरिया बड़ा है और एक का छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम तो छोटे से ही होना है। और अगर दोनों कॉइल का एरिया, दोनों कॉइल में कॉमन एरिया कौन सा है, तो आंसर है कॉमन एरिया स्मॉल वाला है। जब हम ये वाली जोड़ी बनाते हैं म्यूचुअल इंडक्टर के लिए, तो कॉमन एरिया कितना है, AS, जो कि इसके पास भी है और इसके पास भी है। जब ये वाली पेयर बनाते हैं, ये जोड़ी बनाते हैं, तब कॉमन एरिया जो इसके पास है और जो इसके पास है वो कौन सा है, AS। इसलिए हमको एरिया हमेशा कौन सा लेना है, AS। और इसलिए जब हम M21 करेंगे और जब M12 करेंगे, इन दोनों केसेस में कॉमन एरिया तो एक ही होगा, एंड दैट कॉमन एरिया इज A। सो वो जो कॉमन एरिया है, बताइए कौन सा होता है, A स्मॉल या A लार्ज, A स्मॉल। इसलिए यहां पर हम इसको चेंज करके क्या कर देंगे, यहां पर इसको चेंज करके क्या कर देंगे, A स्मॉल। अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन म्यू नॉट N1 N2 A स्मॉल L, दोनों सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है, M21 इज इक्वल टू M12। और अगर M12 और M21 एक समान होते हैं तो हमको फिर 12 लिखने की जरूरत क्या है, वी विल सिंपली राइट इट M। तो इसीलिए अब से हम म्यूचुअल इंडक्शन को क्या लिखेंगे, M, और इसके फॉर्मूला को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N1 N2 A small L। What is AS stands for, the smaller area। ठीक है। So this is mutual induction। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला हमको पता लग गया और म्यूचुअल इंडक्शन की यूटिलिटी यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन, the EMF induced in the second coil depends upon mutual induction। जितना म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उतना EMF ज्यादा बनेगा। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है, N1 और N2 दोनों ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा हो जाएगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। अब ये है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फिर से याद रखिए, एक कॉइल में करंट चेंज होती है, उसके आसपास जितनी कॉइल है सब में EMF चेंज होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। ये हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खासकर बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अभी वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट दैट इज देयर, व्हाट वी कॉल इट ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर जैसा हम यूज करते हैं। तो ये एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हम एक ऐसे रॉड डालते हैं, लोहे की रॉड, और ताकि मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस कॉइल में हम चेंजेस करते हैं EMF के। इधर एक कॉइल और ऐसी बनाते हैं, यहां पर ये वाले चेंजेस हमको यहां पर भी मिल जाते हैं। क्या फिनोमिना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमको ये चेंजेस और भी कहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये वाली फेराइट रॉड को, आयरन की रॉड को लंबा करके ये यहां ऐसे कॉइल लपेट देते हैं। अब जब यहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके अंदर आ जाएगा, आयरन के अंदर। आयरन में भी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा। जब यहां मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो इसके चारों तरफ कॉइल में भी करंट आ जाएगी। कितनी बार चेंज होगी, जितनी बार ये चेंज होती है। तो सेम EMF हमको यहां पर भी मिल जाता है। अगर हम इसको ऐसा लंबा करें या इसके ऊपर एक और कॉइल ऐसा लपेट लें तो ये EMF हमको यहां पर भी मिल जाएगा। हाँ, एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, लेकिन सेम EMF जो यहां हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आप अपने लैपटॉप के हर USB में एक एक USB लगाते जा रहे हैं और उसमें आपको EMF के चेंजेस मिलते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा समझ लो,
या एक्चुअली ये ऑसिलेटर में हम लोग यूज करते हैं। सो ये एक हमारा बेनिफिट है और ये हमको किससे मिल रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन से। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर में और देखेंगे। अब एक छोटी सी चीज और जो हमने पहले बात की थी, दैट इज ओरिएंटेशन। अगर हमको म्यूचुअल इंडक्शन में दो हमारे पास कॉइल है, एक में हम करंट को चेंज करेंगे तो दूसरे में हमको ईएमएफ मिलेगा, करंट मिलेगी। मैंने पहले आपको बताया कि इसमें जब हम करंट 1 एम्पियर पर सेकंड चेंज करते हैं तो इस कॉइल में हमको 10 करंट मिलती है या 10 ईएमएफ मिलता है। तो ये एक सेट बना। दूसरा सेट हमने बनाया, उस सेट में हमने इसमें चेंज किया 1 एम्पियर पर सेकंड और इसमें हमको 20 मिला। तीसरा सेट बनाया, इसमें चेंज किया 1 एम्पियर पर सेकंड और इसमें हमने देखा 1 वोल्ट मिला, बस 20 भी नहीं, 1। चौथे में देखा कुछ भी नहीं मिलता है। वही दो कॉइल है। फिर से इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूं। ये एक कॉइल है, इसमें हम करंट को चेंज करेंगे। दूसरा कॉइल मैंने इसके ऊपर डाल दिया, देखा इसमें पैदा हो रहा है 20 वोल्ट, यहां रख दिया। अब इसके क्रॉस पैदा हो रहा है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट। वही दो कॉइल है, मैं क्या चेंज कर रहा हूं? ओरिएंटेशन। दिस 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 दिस। इसमें चेंजेस 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसका ईएमएफ 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट। ये कहलाता है दोनों का आपस में जुड़ना, दैट इज कपलिंग। सो द टू कॉइल्स फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट हैव ए कपलिंग विच डिपेंड्स अपॉन देयर ओरिएंटेशन। अब फिजिक्स में हम लोग हर चीज को मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। वी वांट टू एक्सप्रेस देम इन नंबर। कौन सी कपलिंग कितनी अच्छी है, इसके साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी 1000, पूरी की पूरी 1000 हम इसके साथ टच करा देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर ही इसको लपेट दिया। अब वो 1000 निकल के कहीं से भी बाहर जाए, इसको टच करना पड़ेगा। ये है बेस्ट कपलिंग। और 100% कपलिंग, 100%, 100/100 कितना हुआ? 1। तो ये कपलिंग का हमने मार्क क्या रखा? 1। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 यहां आ गया। अब इसकी 20% बाहर चली गई। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.5, सॉरी ऐसा कर दिया 0.5 और ऐसा किया नो कपलिंग। क्यों? इसकी कॉइल कैसी है? ऐसी। इसकी लाइन कैसे जा रही है? ऐसी। काटी क्या? नहीं काटी। तो कपलिंग कितना हुआ? 0। समझ में आया? और इसमें आप देखिए इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एंगल कितना हुआ? 90, cos 90 इज 0। सो हाउ मच इज द कपलिंग? 0। तो ऐसा रखेंगे, हम देखेंगे इसमें कोई ईएमएफ आ ही नहीं रहा, हम इसमें चेंज करते जा रहे हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हियर इज 0 विच इज ड्यू टू ओरिएंटेशन। तो इसको सिर्फ 2 लाइन का नोट और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए हम यहां पर बना लेते हैं ओरिएंटेशन। Orientation into coils. Decide effectiveness of mutual induction. C1, C2. This coefficient of coupling here is 1.
यहां पर कपलिंग का कोएफिशिएंट लेस देन 1 मोर देन 0, बिटवीन 0 to 1, क्योंकि इसमें से कोई हो सकता है ऐसी बाहर चली जाए, बाकी सब कनेक्ट। और तीसरा मैं यहां बना देता हूं, flux link is equal to 0. Small k, right. So we will use coefficient of coupling small k. So here k is equal to 1, here k is between 1 to 0, and here k is equal to 0. तरीका समझ आया? वही 3 कॉइल हैं, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन तीनों में बदल जाएगा. सो इट्स वेरी मच required that we keep coupling the two coils in such a way that their coefficient of coupling is 1. Now mutual induction is for 2 coils, ये 2 कॉइल, और इन दोनों कॉइल के पास अपना अपना सेल्फ इंडक्शन होता है, L1 L2. सेल्फ इंडक्शन एक क्वांटिटी है, म्यूचुअल इंडक्शन इन दोनों की आपस की क्वांटिटी है, लेकिन है दोनों इंडक्शन. क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है? आंसर है यस, देयर वैल्यूज आर रिलेटेड एंड वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट. वो कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं करेंगे, पर उस क्वांटिटी को आप याद कर लिए. म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 कॉइल्स इज इक्वल टू रूट L1 एंड L2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2. दिस गिव्स द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2, पर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना? 100%. तब ये एक फॉर्मूला हमको मिलता है. एक दूसरा फॉर्मूला के का फॉर्मूला कितना है? पार्डन? m अपॉन रूट L1 L2. पर ये दोनों तो इक्वल है. ओके, I told you that here k is equal to 1. If k is equal to 1, then 1 is equal to m upon root L1 L2. So m is equal to root L1 L2 for k is equal to 1. तो ये हमको हेल्प करता है इन केस. इसका न्यूमेरिकल मैंने देखा है, एग्जाम में आता है. इट इज गिवन दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वन कॉइल इज सो मच, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू इज सो मच, the coupling is 100%, then what is the value of L2? You can calculate with this. So remember this formula, इसको भी याद कर लीजिए.